Assalamualaikum everyone. I hope you people are doing good. Today I am going to share 15 skincare combos you must try in English and Urdu. Both languages. Like I will start in English first and followed by Urdu. On first we have vitamin C plus hyaluronic acid. You can see why to use them together because vitamin C brightens the skin and fights free radical while hyaluronic acid deeply hydrates and plumps the skin. They complement each other without irritation. विटामिन सी स्किन को ब्राइट करता है और फ्री रेडिकल से बचाता है, जबकि हाइलुरोनिक एसिड गहरी नमी देता है और स्किन को फुल करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इरिटेशन के बगैर भी काम कर सकते हैं। तरीका बेहतर यही होगा कि अप्लाई विटामिन सी फर्स्ट ऑन क्लीन स्किन, देन लेयर हाइलुरोनिक एसिड टू लॉक इन मॉइस्चराइजर। पहले विटामिन सी लगाएं, फिर हाइलुरोनिक एसिड लगाएं ताकि नमी बरकरार रहे आपकी स्किन की। एक एग्जांपल मेरे पास विटामिन सी की ये वाला सीरम हो गया और एक हाइलुरोनिक एसिड की ये वाले 2 सीरम्स हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल पुट दिस वन ऑन माय फेस एंड देन दिस वन to moisture, to lock the moisture. On number 2 we have niacinamide plus zinc. Although I already have an example for both of them, this is the product. All you people can see this contains niacinamide 10% and zinc 1%. All right, so why this combination, why to use them together? Because niacinamide reduces inflammation and redness while zinc controls oil production and helps you to heal with acne. Together they calm and balance the skin effectively. Better option is that use them in the same routine to soothe and protect oily or acne prone skin. This combination is best for oily skin or oily acne prone skin. ओके, सो नाइसिनामाइड जलन और रेडनेस कम करता है, जिंक ऑयल कंट्रोल करता है और एक्ने को ठीक करता है। ये दोनों मिलकर स्किन को आम तौर पे ना एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। इन्हें एक रूटीन में इस्तेमाल करेंगे आप तो आपकी ऑयली एक्ने प्रोन वाली स्किन को बहुत फ़ायदा होगा। आपके एक्नीस भी कम होंगे और थोड़ी सी ऑयलनेस भी आपकी स्किन पर से कम हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा नंबर 3 पॉइंट। आई डोंट नो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस स्टफ, पता नहीं, बस मुझे मज़ा आ रहा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बट मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग दिस एनी हाउ। On number 3 we have retinol plus hyaluronic acid. Why to use them together is good because retinol boosts cell turnover and fights aging but can dry out skin. Hyaluronic acid hydrates and soothes the skin, reducing irritation from retinol. Better option is that apply retinol first, then layer hyaluronic acid to keep the skin moisturized and calm. रेटिनॉल स्किन की रिन्यूअल बढ़ाता है और एजिंग से लड़ता है आपके लिए, मगर स्किन को ड्राई कर सकता है। हाइलुरोनिक एसिड नमी देता है और स्किन की इरिटेशन कम कर देता है। इसका बेटर तरीका यह होता है कि पहले रेटिनॉल लगाएं और फिर हाइलुरोनिक एसिड लगाएं ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे और रिलैक्स्ड रहे। मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों प्रोडक्ट्स। एक ये रेटिनॉल वाला हो गया और ये हाइलुरोनिक एसिड वाला हो गया। ठीक है, अमूमन हाइलुरोनिक एसिड को इसलिए यूज़ किया जाता है टू लॉक द स्किन मॉइस्चर। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले ये वाला लगा लो और फिर ये लगा लो आप। सो ऑन नंबर 4 वी हैव AHS which means glycolic acid plus hyaluronic acid. Why to use them together? AHS exfoliates dead skin cells and brightens the skin while hyaluronic acid hydrates and prevents dryness caused by exfoliation. Better option is that use AHS first, then apply hyaluronic acid to maintain moisture and smoothness. I have an example for AHs like this one, and for hyaluronic acid I got this one. Alright, AHs डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को ब्राइट करता है और हाइलुरोनिक एसिड ड्राइनेस से बचाता है, नमी देता है। इसका अच्छा तरीका ये है इस्तेमाल करने का कि पहले आप ग्लाइकोलिक एसिड वाले सीरम या प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें और उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड वाले यूज़ कर लें ताकि आपकी स्किन जो है ना वो बैलेंस्ड रहे, मॉइस्चराइज्ड रहे और हाइड्रेटेड रहे। On number 5 we have vitamin C plus niacinamide. So I don't know why I'm doing this because I'm enjoying doing this. I believe. Now we have vitamin C plus niacinamide. Why to use them together? Both brighten the skin and reduces inflammation together when used properly. They complement each other without reducing effectiveness. Better option is use them in the same routine but layer one after the other or use on alternate times of the day. दोनों स्किन को ब्राइटन करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और
साथ साथ इसका सही तरीके इस्तेमाल करने का ये होता है कि एक के बाद एक लगाया जाए या अलग अलग वक्त पे यूज़ कर लें। बट अगर आप इकट्ठे भी लगा लोगे तो ये आपकी स्किन को डिस्टर्ब, मॉइस्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनका ओवरऑल इफेक्ट आपकी स्किन की ब्राइटनेस पे जाएगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है आपकी स्किन के लिए। So number 6 we have ceramides plus hyaluronic acid. Ceramides वाले वो होते हैं, like for example CeraVe. You know about the company, right? So they use this one ingredient in their products. So together using ceramides plus hyaluronic acid, actually why to use them together? Because ceramides repair and strengthen the skin barrier, while hyaluronic acid provides deep hydration. Together they keep skin healthy and moisturized. For better option, apply hyaluronic acid first, then ceramide based moisturizer to lock the moisture. सेरामाइड स्किन बैरियर को मजबूत करते हैं और हाइलुरोनिक एसिड गहरी नमी देता है। दोनों मिलकर साथ एक अच्छी हेल्दी हाइड्रेटेड स्किन बना देते हैं आपकी। बेहतर तरीका ये हो कि पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाएं और फिर सेरामाइड मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि नमी बरकरार रहे। हाइलुरोनिक एसिड की एग्जांपल तो आपको पता ही है। सेरामाइड्स CeraVe जैसे प्रोडक्ट्स के इनकी कंपनी के इंग्रेडिएंट्स में ये शामिल होता है मॉइस्चर के तौर पर, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस ऑल शिट, आई डोंट नो व्हाई कि मुझे मज़ा आ रहा है गंद मचाते हुए। कोई हाल नहीं मेरा, थोड़ा सा नीट करते हैं हम बोर्ड को अपने, काफ़ी गंद मचा लिया मैंने, ठीक है। ओला शाबाश शाबाश। On number 7 we have sunscreen plus antioxidants. For example, vitamin C and vitamin E are the best one examples of antioxidants. Why to use them together? Because sunscreens protect skin from UV damage, while antioxidants neutralize free radicals and boost skin defense. Together they enhance overall sun protection and skin health. A better option is that apply antioxidant serum first, then sunscreen as the last step of your morning routine. सनस्क्रीन धूप के नुकसान से आपको पता है सनस्क्रीन बचाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट फॉर एग्जांपल विटामिन सी वाले या विटामिन ई वाले सीरम, टोनर, इस तरह के जो क्रीम्स या कोई भी इस तरह के जिनमें विटामिन सी हो या विटामिन ई हो, सिंपल यार इस तरह कर लो। ये वाले जो है ना, ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं स्किन में। दोनों मिलकर स्किन को एक ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हेल्थी बना देते हैं। इसका तरीका ये होता है कि पहले विटामिन सी वाला कोई भी सीरम या क्रीम लगा लो, फिर विटामिन ई या फिर विटामिन ई वाला कुछ लगाना है आपने तो वो लगा लो, और आफ्टर इट आप सनस्क्रीन लगा लो टू लॉक। इससे हर चीज़ लॉक हो जाती है, समझते रहे हो ना। हाँ, अब तक इतनी अगर आपने मेरी स्किन की वीडियोस देखी होंगी यहाँ तक तो आपको काफ़ी तक चीज़ समझ आ जाएगी, मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। सो ऑन नंबर 8 we have is retinol plus peptides. Why to use them together? Retinol boosts collagen production and cell renewal, while peptides support skin repair and firmness. Together they enhance anti-aging benefits without excess irritation. Better option is to use the retinol first, then apply peptide serum or moisturizer to soothe and strengthen the skin. अब जो सॉरी एवरीवन, रेटिनॉल कोलेजन बनाता है आपकी स्किन का और स्किन को रिन्यू करता है, जबकि पेप्टाइड स्किन रिपेयर और फर्मनेस को सपोर्ट करता है। दोनों मिलकर एजिंग का नुकसान कम करते हैं, एजिंग आपकी स्किन से कम कर देते हैं। तरीका बेटर ये होता है कि पहले रेटिनॉल लगाएं और फिर पेप्टाइड सीरम या मॉइस्चराइज़र लगाएं, तो ओवरऑल आपकी स्किन पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। अब रेटिनॉल की तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पेप्टाइड्स यार ये बड़ा कॉमनली यूज़ होता है इंग्रेडिएंट, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो इस इंग्रेडिएंट को बड़ा कॉमनली, हाँ द ऑर्डिनरी, ये इनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स में ना, सीरम वगैरह में ये पेप्टाइड्स वाला इंग्रेडिएंट बहुत यूज़ होता है। एक और भी है यार, कौन सा है, ऑलैन, बाकी भी मुझे पता जहन में आ रहे हैं नाम, लेकिन ये दो काफ़ी कॉमन है तो इसलिए आई गेस आपको ये रिमेंबर करने में आसानी होगी। तो रेटिनॉल के साथ आप इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर ले जिनमें पेप्टाइड शामिल हो, क्योंकि ऑर्डिनरी की काफ़ी में होता है, ओले की काफ़ी उसमें होता है, इन ओले की जो मेरे ख्याल है क्रीम होती है उसमें होता है, और पेप्टाइड्स की आई गेस एक बफेट सीरम होता है या कॉपर पेप्टाइड्स 1% वाला एक सीरम या क्रीम होती है, मुझे सही याद नहीं आ रहा। तो ये उनकी बात हो रही है। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे ओवरऑल बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा,
और आपकी स्किन पे एजिंग जो है ना वो कम लगेगी। आपकी स्किन पे ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देगा, रिंकल्स, फाइन लाइन्स वगैरह को इकट्ठे मिलकर रिड्यूस करेगा। सो ऑन नंबर 9 वी हैव सैलिसिलिक एसिड प्लस बेंजोइल पेरोक्साइड। वेट व्हाट? I guess actually it's a mistake. This point is not should be written here. I think I just mixed the point. This one combo you must avoid. You have to avoid, peeps. I'm really sorry, I don't know why this happened, but okay, let me explain you this one, that why you should avoid this combination. Both are strong acne fighting ingredients that can cause excessive dryness and irritation if applied at the same. Better is to use them alternate days or different times, for example morning or evening, to minimize irritation. दोनों स्ट्रॉन्ग एक्नी ट्रीटमेंट्स हैं, अगर एक साथ लगाएंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और इरिटेटेड हो जाएगी। इनका तरीका ये कि आप इन्हें ऑल्टरनेट डेज में लगा दें। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई डोंट नो व्हाई। एक तो प्लीज़ बैकग्राउंड की बातें अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज हमारे घर में बात करने का यही तरीका है। ऐसा लग रहा होता है कि आपस में लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। एनी हाउ मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं डालना था, ये पॉइंट उसमें उसका पार्ट था कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन लाजमी मिस करना है, ये वाला कॉम्बो आपने एक साथ नहीं ट्राई करना। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं भी कंफ्यूज हूँ। ये पॉइंट यहाँ का नहीं था, आपने ये वाला कॉम्बिनेशन यू मस्ट अवॉइड, ठीक है। उसकी रीजंस ये मैंने आपको बता दें कि ये दोनों एक्ने ट्रीटमेंट्स के लिए होते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की मैं कोई एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि ये किन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, सो डैट यू हैव वेरी क्लियर आइडिया। ये देखिए, फिर मैंने पैरी कर दिया, पता नहीं व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। पेरोक्साइड, ऑलराइट। तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इस तरह के, जैसे कि आपके पास हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिरावे। यस, मेरे पास एक अच्छी सी एग्जांपल आ गई, अदरवाइज़ मैं ये मिस कर जाती। आपको पता है सिरावे तो बहुत कॉमन कंपनी है, बहुत इनकी प्रोडक्ट्स कॉमनली लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद न्यूट्रोजीना आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो सिरावे जो कंपनी है ना, ये न्यूट्रोजीना, ये अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में बेंजोइल पेरोक्साइड ऐड करती है। तो जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो कोशिश करें कि साथ में सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल भी ना यूज़ करें, ठीक है। सो 10 पॉइंट है, सॉरी लास्ट मैंने थोड़ी सी आवाज़ ऊँची कर दी थी, बिकॉज मेरे घर वाले शदीद किस्म का चिल्लाने लग गए थे। वो चिल्ला नहीं रहे होते, वो असल में आपस में बात कर रहे थे, बट माशाल्लाह से उनके बात करने का अंदाज़ ही इतना मुनफरिद और दिलचस्प है। एनी हाउ, on number 10 we have clay mask plus hydrating serum. Why to use them together? Because clay mask detoxify and absorb excessive oil, while hydrating serums replenish moisture lost during cleansing. All right, better option is to use the clay mask first, then apply hydrating serum to keep skin balanced and moisturized. तरीके इसका ये कि क्ले मास्क एक्चुअली बेसिकली ना, क्ले मास्क जो होते हैं वो स्किन को डिटॉक्स करते हैं और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं, आपको पता है स्किन ड्राई होने लग जाती है, जबकि हाइड्रेटिंग सीरम्स ना आपकी हाइड्रेशन मॉइस्चर को वापस लाते हैं। तो तरीका ये होता है कि पहले आप क्ले मास्क लगा लें, कोई मुल्तानी मिट्टी का सार, मैंने काफ़ी सारे मुल्तानी मिट्टी के तरीक़ेकार और मास्क अपने वीडियोज़ में शेयर कर दिए, आप देख सकते हैं उधर भी। तो ये ओवरऑल ना एक आपको एक अच्छा परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन मिल सकता है, बिकॉज पहले क्ले मास्क आप लगाएंगे, आप धोएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, फिर आप हाइड्रेटिंग सीरम लगा लेंगे ताकि स्किन हाइड्रेटेड और बैलेंस्ड हो जाएगी। सो ऑन नंबर 11 वी हैव, यार आप लोगों के साथ ना आई वांटेड टू बी वेरी जेन्युइन एंड वेरी रियल, इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती, मैं ज़्यादा मीठी मीठी तारीफ़ें नहीं करती, जो चीज़ जैसी मैं आपको एज इट इज़ बताती हूँ, ताकि ना मैं अपनी वीडियोज़ को ना काफ़ी जेन्युइन रखूँ। मेरा ये चैनल के स्टार्ट से ही एम था कि मैं बहुत जेन्युइन रहा करूँगी अपनी ऑडियंस के साथ। एनी हाउ, अब 11 पे ऑन नंबर 11 वी हैव विटामिन सी प्लस सनस्क्रीन। वाई टू यूज देम टुगेदर? बिकॉज विटामिन सी बूस्ट स्किन्स डिफेंस अगेंस्ट यूवी डैमेज एंड ब्राइटन्स, while sunscreen provide physical and chemical protection from the skin. Better option is that to apply vitamin C serum first, followed by sunscreen as the last step in your morning routine. विटामिन सी स्किन को यूवी डैमेज से बचाता है और ब्राइटन करता है, सनस्क्रीन धूप से हिफाजत करता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्टली बैठता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मैं अमूमन ये करती हूँ कि पहले विटामिन सी सीरम लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं सनब्लॉक लगा लेती हूँ। सनब्लॉक मैं ये वाला भी यूज़ करती हूँ और मेरे पास कुछ 6 और किस्म के भी पड़े जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट।
On number 12, we have niacinamide plus moisturizer, right? Why to use them together? Why they are good? Because niacinamide strengthens the skin barrier and reduces redness, while moisturizer locks in hydration and soothes the skin. A better option is to apply niacinamide serum first, then follow with a moisturizer to seal in the benefits. नाइसिनामाइड स्किन बैरियर को मजबूत करता है और रेडनेस कम करता है, और मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आपकी स्किन की नमी को लॉक करता है, यानी कि मॉइस्चर को लॉक करता है और स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। बेहतर तरीका ये होता है कि पहले आप नाइसिनामाइड सीरम लगाएं और फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं। सो ये एक ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन जगह आपकी स्किन के लिए, टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, और साथ में रिड्यूस करेगा रेडनेस को भी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। काफ़ी गुड कॉम्बिनेशन है। मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन काफ़ी दफ़ा अपनी लाइफ में ट्राई किया, एक ये वाला और एक लास्ट वाला, उस पर भी मैं डिटेल में बात करती हूँ। ओके, ऑन नंबर 13 वी हैव रेटिनॉल प्लस मॉइस्चराइज़र. Why to use them together? Because retinol can cause dryness and irritation, while moisturizer hydrates and soothes the skin, reducing these side effects. A better option is to apply retinol first, then follow with the moisturizer to keep the skin calm and hydrated. रेटिनॉल स्किन को ड्राई इरिटेटेड कर सकता है, जबकि मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट और सूथिंग इफेक्ट देता है। तो आप दोनों यूज़ करेंगे एक साथ तो इट वुड बी अ गुड कॉम्बो। पहले रेटिनॉल लगाए फिर मॉइस्चराइज़र लगाए ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक रेटिनॉल की एग्जांपल हो गई और ये एक मॉइस्चराइज़र की एग्जांपल हो गई। पहले आप रेटिनॉल लगाइएगा और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए ताकि आपकी स्किन रिलैक्स रहे और मॉइस्चराइज रहे, इक्वली बैलेंस रहे। और नंबर 14 वी हैव, क्या है भाई 14 पे हमारे पास, एज़लाइक एसिड प्लस नाइसिनामाइड. वाई टू यूज़ देम टुगेदर? यार इसकी ना एक मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आप लोग को ना इसको समझने में आसानी हो। इसकी एज़लाइक एसिड कौन सी कंपनी, कौन से ब्रांड्स वाले अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट? द ऑर्डिनरी वाले करते हैं। इनका स्पेशल एक ब्रांड है प्रॉपर द ऑर्डिनरी का, जिसमें ये लोग ऑर्डिनरी ये वाला एलिमेंट यूज़ करते हैं। सो वाई टू यूज़ देम टुगेदर? Azelaic acid reduces redness and acne, while niacinamide soothes and strengthens the skin barrier. Together they effectively calm irritated acne-prone skin. Okay, better to use this one first and then apply niacinamide serum or moisturizer. Azelaic acid रेडनेस और एक्नी कम करता है और नाइसिनामाइड स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है, मजबूत करता है। दोनों मिलकर इरिटेटेड और एक्नी वाली स्किन को काम करते हैं, आराम देते हैं। पहले आप जो भी प्रोडक्ट कंपनी इसको एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ करें, ये वाला प्रोडक्ट लगा लें और फिर बाद में आप नाइसिनामाइड सीरम या मॉइस्चराइजर लगा लें। अप टू यू। थैंक यू। नंबर 15 वी हैव माई मोस्ट फेवरेट रूटीन, माई मोस्ट फेवरेट कॉम्बो विच आई यूज़ लाइक माई 24 days out of 30 days. That is gentle cleanser plus moisturizer. So why to use them together? Why they are really good? Because a gentle cleanser cleans the skin without stripping natural oil, and moisturizer restores hydration and protects the skin barrier. Use a gentle cleanser to wash your face and apply moisturizer to keep skin soft and balanced. जेंटल क्लेंजर स्किन को साफ़ करता है बिना नेचुरल ऑयल को डिस्टर्ब किए, और मॉइस्चराइज़र वापस आपकी मॉइस्चर को, नमी को वापस लाता है और स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। पहले एक जेंटल क्लेंजर से अच्छी तरह मुंह धो लो और फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा लो ताकि स्किन सॉफ्ट और बैलेंस रहे। यार मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ। मेरी रूटीन का ना 24 डेज़ होते हैं, 30 में से ये 2 प्रोडक्ट्स मेरी रूटीन का हिस्सा होते हैं। लाइक इतने प्रोडक्ट्स मेरे पास, न्यूट्रोजीना और पता नहीं क्या क्या, लाइक अच्छे खासे। मैं ज़ाहिर रिव्यूज़ बनाती हूँ तो यू पीपल नो डैट, राइट? उसकी रीज़न क्या है यार कि ये दोनों फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इनकी ख़ास बात यह कि तो ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है दोनों प्रोडक्ट्स और फ्रेगनेंस फ्री हैं। अब मैं कभी कोई स्किन पे ट्रीटमेंट लेती हूँ, लेट्स सपोज लेज़र करवा के आती हूँ, या मैं वैक्स करवाऊँ, या मैं कोई भी हाइड्रा फेशियल करवाऊँ, क्यू स्विच करवाऊँ, तो उसके बाद ना मेरी स्किन पे मुझे डॉक्टर ख़ास तौर पे मना करते हैं और आप लोगों को भी मना करते हैं कि यार आप लोग एटलीस्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स कोई भी फ्रेगनेंस वाली चीज़ मुँह पे मत यूज़ किया करो। तो उस तरह कोई फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो हमारे चेहरे पे ना साइड इफेक्ट कर जाता है। ये 2 मेरी रूटीन का हिस्सा हैं एंड आई लव देम। आई लव दिस कॉम्बो प्लस आई लव दीज प्रोडक्ट्स। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ,
अगर आपकी स्किन को, चलो यार मैं आप लोग को एक बड़ा मजे का हैक बताती हूँ। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, अगर लेट्स मैं आपको ना, चलो मैं आपको ऐसा कहती हूँ, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, ओवर ड्राई है, ओवर ऑयली है, तो मेरे एक मशवरा माने, बल्कि ओवर सेंसिटिव भी है, तो मेरे एक मशवरा माने कि आप सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स, कुछ भी नहीं, ना कोई सीरम ना कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स और इनके साथ कोई अच्छा सा सनस्क्रीन यूज़ कर लें और 1 हफ्ता आप ये करके देखें, आप अपने चेहरे पे विजिबल इफेक्ट्स देखेंगे सब। मैं आप लोग को यहाँ पे अभी मेरे सामने इतने प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं गिनवा रही, मैं आपको कोई टोनर, कोई सीरम, कुछ भी नहीं कह रही। आप ये 1 हफ्ता करके देखो और उसके बाद अपनी स्किन पे आप रिजल्ट्स देखना। एक हडसन का फेशियल क्लेंजर, एक हडसन का मॉइस्चराइजर और साथ में रिप्लेनिक्स की सनस्क्रीन यूज़ कर लेना। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। कोई टोनर, कुछ भी नहीं मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ हडसन की ये 2 चीज़ें और ये वाली सनस्क्रीन, ये 1 हफ्ता लगा के देखो। अगर ना इफेक्ट आया, अगर ना आपकी स्किन पे बेहतरी आई, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बेशक जितनी मर्जी मेरी बजा देना, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं इज्जत से सह लूँगी। ये इसकी मैं गारंटी देती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी प्रोडक्ट के हवाले से वीडियो में कभी ये लफ्ज़ नहीं बोला कि यार मैं गारंटी देती हूँ इस प्रोडक्ट की, ऐसा मैं कभी नहीं कहती। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मैंशनिंग दैट आई गारंटी कि ये 3 प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने बस ये करना। देखो मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करी कि आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, ये गलत चीज़ है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ़ हो जाए, मतलब एक्नीज ना हो, ब्रेकआउट्स ना हो, ओवरली ड्राई ना, ओवरली ऑयली ना हो, सेंसिटिव ना हो, तो यार ये 3 बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और ये ट्राई करो आप लोग, ये कॉम्बिनेशन। और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि किसको इसका फ़ायदा नहीं हुआ। बस 1 हफ्ते का हैक दे, 1 हफ्ते का चैलेंज दे, 1 वीक चैलेंज बस। कोई फेस वॉश नहीं लगाना, कोई क्लेंजर कुछ भी और नहीं लगाना, बस हडसन का ये वाला क्लेंजर यूज़ करना है मुँह धोने के लिए। उसके बाद मुँह धो के वापस आओगे तो ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा लेना रात में, और दिन के टाइम पे जब क्लेंजर से मुँह धोकर आओगे ना तो ये सनस्क्रीन लगा लेना। बस 1 हफ्ता ही करके देखो और फिर मुझे रिजल्ट्स बताओ। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।